already discussed the various controls, radio buttons, check boxes, ticket, and we had done the decision statements also. Control statements हमने की, decision statement, one decision statement we had done, that is if then else. Okay. Today the last topic that we are going to discuss is that is looping statements can be two types again, for next statement and do while statements. Do while or do until. You can write down in your rough copies. Control statements. Control statements are of two types. One is decision statement, second is looping statements. Decision statements are further divided into two types, if then else statement and select case. And looping statement are for next and do while. Now, decision statements will help you to change the control or the flow of statements by checking some condition. Based on some condition, the flow of the statement changes. Like, अगर हमने if then statement के साथ check करते हैं, अगर condition true है तो one set of statement will be executed. अगर statement false है तो other set of statement will be executed, right? So that means the execution of the statement is based on condition. Decision of the condition, the result of a condition. We are making a decision based on a condition which set of statements will be executed. That is why they are called decision statements. Clear? Looping statement, when we are required to repeat a set of statements for a number of times, whether a fixed number of time or depending on a condition. कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है या जब तक ये कंडीशन फॉल्स है या जब तक ये कंडीशन मेट नहीं होती है, this set of statements will get executed. That can be one time, that can be 10 times, that can be 50 times, that can be 4 times only. That depends on condition. जब तक कंडीशन ट्रू है या जब तक कंडीशन फॉल्स है, that depends on the condition statement. कि जब तक ये चीज चल रही है, हो नहीं जाती, तब तक ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी. चाहे एक स्टेटमेंट है, चाहे वो 10 स्टेटमेंट्स है. These statements will be executed. That is the control statement. Oh, sorry, looping statement. It could be I know in beforehand कि मेरे को पास इतनी 10 बार ये स्टेटमेंट चलानी है. फिक्स नंबर पता है कि ये 5 टाइम चलानी है, ये 4 टाइम चलानी है या 100 टाइम चलानी है. That is again looping statement. So though for those purpose we are having for next and do while. For next for fixed number of times, do while depending on a condition, repeat a set of statements. ठीक है? Similarly, if then and select case both are used for making the decisions. How many students are present? 33. 8B. Acha. Clear hai? Out of these we had done only if then else. Today we will do select case. Okay? These two we will not do in this term. I know. That's why I'm telling you. These two we are not going to do in this term. Yes, you can cross it. Last page आपके chapter का. You can cross that page. ठीक है? Because of the limitation of time, we are skipping this topic. ठीक है?
Okay, now come to the last topic. Anji, now suppose we are having a condition if then else. आपने already use किया है. Write down its syntax in your rough copy. Write down its syntax in your rough copy. सबने syntax पहले I think note करवाया भी हुआ मैंने. If condition then statement, else again statement. बट सपोज करो अगर मेरे पास एक से ज्यादा कंडीशंस है, जैसे मुझे ग्रेड देने हैं, मार्क्स के ग्रेड देने हैं, ठीक है. इफ द मार्क्स आर ग्रेटर देन 90 ग्रेड शुड बी ए. इफ द मार्क्स आर बिटवीन 80 to 90 ग्रेड शुड बी बी. इफ द मार्क्स आर बिटवीन 70 to 80 ग्रेड शुड बी सी. ठीक है. सिमिलरली if the marks are between 50 to 60 grade should be D and below 50 grade should be E. So there are multiple conditions. ठीक है. When we are having multiple conditions, we can use if then else statement also. We can use select case also. How? अगर मुझे if then else use करनी है तो पहली कंडीशन हो गई if condition 1 then ये चलेगा, यानी ग्रेड ऐसा होगा. मैंने कंडीशन है मार्क्स आर ग्रेटर देन 90. एग्जांपल दे रही हूँ. else if, else के साथ फिर if लग सकता है. else if condition 2, ठीक है, then again statement, then I can assign the grade. ठीक है, that grade is equal to B. Okay, again else if, जितनी कंडीशंस है I can continue with the statement. else if, then again statement, continue, लास्ट में आएगा else statement without condition and end if. This is used when we are having multiple conditions. ठीक है, more than one condition is to be checked. जैसे मैंने अभी आपको ग्रेड की एग्जांपल दी है. It could be in the case of discount. If the bill of the customer is greater than 10,000, give them 10% discount. If the bill of the customer is greater than 8,000 but less than 10,000, discount should be 8%. So it could be different rate of discounts depending on the amount of bill. So where multiple conditions are to be checked, when we can use this type of statements. else लास्ट में जब इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तब क्या करें, दैट इज else पार्ट. ठीक है, वो लास्ट में आएगा कि इनमें से कोई कंडीशन, जैसे हमारा ग्रेड का था कि ग्रेटर देन 50 to 60 तक हमने दे दिया डी ग्रेड. else का मतलब लेस देन 50 हो गया, else ग्रेड शुड बी E. ठीक है, तो दैट इज कम विद द else पार्ट, लास्ट पार्ट. नाउ दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय यूजिंग select case. Select case expression और condition और variable name. ठीक है, select case यहां पर क्या आ रहा है, select case expression then case 1 first condition अगर true है, जैसे case marks 90%. ठीक है, मैंने यहां दे दिया case select case marks. ठीक है, फर्स्ट केस क्या है, केस 1 मार्क्स. जो केस मार्क्स अगर है हमारा केस मार्क्स इक्वल्स टू ग्रेटर देन 90 तो क्या करें, स्टेटमेंट ग्रेड इज ए. ठीक है, केस 2 अगेन स्टेटमेंट. केस 3, जितने स्टेटमेंट्स के आपके ऑप्शंस हो सकती हैं, ऑल दीज विल कम इन केस कीवर्ड. ठीक है, else if नहीं लगा रहे अब, केस 1, केस 2, केस 3. ठीक है, लास्ट में आपका आ जाएगा केस else. एंड देन अगेन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट. एंड इफ की जगह अब क्या हो गया, एंड सेलेक्ट. केस 4, केस 5 जितने केसेस हो वी कैन कंटिन्यू. केस 3 तक कंपल्सरी नहीं है, इट कुड
be 2 cases, it could be 5, it could be 7, it could be any number of cases. यहाँ पर भी ये सिमिलर था कि else if जितने मर्जी हो सकते हैं, depending on the number of conditions. Write down the syntax of both. ठीक है, क्लियर है? ये रब कर दूं? ज्यादा कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है, रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे को। सपोज करो मैंने एक वेरिएबल लिया मार्क्स, मैं पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ सिलेक्ट केस बता रही हूँ। मार्क्स इक्वल्स टू वैल ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। हाँ जी, एग्जाम्पल है, लिख सकते हो। ठीक है, अब मार्क्स में क्या आ गया? मार्क्स वेरिएबल में क्या आ रहा है? वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 1, मार्क्स एंटर हो गए। ठीक है, अब सेलेक्ट केस मार्क्स, मार्क्स की वैल्यू चेक करनी है। सेलेक्ट केस मार्क्स, एक्सप्रेशन आ गया, केस मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, केस 1 हो गया। ग्रेड शुड बी, मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है ग्रेड, ग्रेड शुड बी ए। ठीक है, केस marks greater than equal to, sorry, greater than equal to 80 and marks less than 90, and condition लग गई, आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज हो गए। ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम लैब में बताए थे। ठीक है, अब क्या कंडीशन बन गई? मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 एंड मार्क्स इज लेस देन 90, दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तब एंड ऑपरेटर वर्क करेगा। एंड का मतलब कंडीशन दोनों ट्रू होनी चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। ग्रेटर देन 90, 85 मार्क्स है, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 90, दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, तब क्या ग्रेड क्या होगा? बी। ठीक है, सिमिलरली केस मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 and marks is great less than 80, अगर इस रेंज में मार्क्स होंगे ग्रेड इक्वल्स टू सी। वी कैन कंटिन्यू विद ऑल द ग्रेड्स। लास्ट में क्या आ गया? केस एल्स, ग्रेड इक्वल्स टू ई। ठीक है, एंड लास्ट में एंड सेलेक्ट। अब ये एंड सेलेक्ट हो गया, ग्रेड की वैल्यू मेरे पास आ गई ग्रेड में। इट कुड बी डिस्प्लेड इन अ लेबल नाउ, मुझे जहां रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है फॉर्म के ऊपर, ये वैल्यू मेमोरी में स्टोर हो रही ना, अभी ग्रेड वेरिएबल है, मेमोरी में वैल्यू आ गई कि ये ग्रेड की वैल्यू है, इनमें से कोई एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स, वेदर ए और बी और सी और ई, कोई एक वैल्यू स्टोर हो गई। नाउ आई कैन डिस्प्ले इट ऑन द लेबल और इन अ टेक्स्ट बॉक्स, जहां पर भी आपका फॉर्म के ऊपर आपने डिस्प्ले करवाना है आप डिस्प्ले करवा सकते हो। जब एंड करना होगा तो केस एल्स आ जाएगा, हाँ लास्ट में केस एल्स आ जाएगा। ठीक है, देन सपोज लास्ट में मैंने इसको डिस्प्ले करवाना है लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू ग्रेड। ग्रेड, ग्रेड में कोई वैल्यू आएगी ना, ए बी सी या ई, इनमें से कोई एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सपोज मैंने मार्क्स एंटर कर दिए 75, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन चेक हुई, मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, फॉल्स। सेकंड आई, मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, फॉल्स। थर्ड आई, मार्क्स इज ग्रेटर देन 70, ट्रू। लेस देन 80, ट्रू। ग्रेड की वैल्यू कितनी हो गई? सी। खत्म। जब एक एग्जीक्यूशन हो गई एंड सेलेक्ट, बाकी स्टेटमेंट्स इग्नोर। उसके बाद आगे उसने चेक नहीं करना, उसके बाद वो एंड सेलेक्ट। एक कंडीशन ट्रू हो गई, मेट हो गई, एक केस मैच कर गया, एंड सेलेक्ट। एंड हाँ, F5 जब प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली, जब उसने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठाएगा, टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू एंटर करेंगे, हम बटन पे क्लिक करेंगे,
बटन क्लिक इवेंट पे ये लिखेंगे, ठीक है। व्हेन ग्रेड की वैल्यू सी आ गई, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू ग्रेड, तो ग्रेड क्या डिस्प्ले हो जाएगा, सी। क्लियर? सपोज मैंने मार्क्स एंटर कर दिए 89, मार्क्स में ग्रेड एंटर कर दिए 89, बटन पे क्लिक किया, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी शुरू हुई, मार्क्स इज इक्वल टू 89, केस मार्क्स ग्रेटर देन 90 फॉल्स, सेकंड ग्रेटर देन 80 ट्रू, लेस देन 90 ट्रू, ग्रेड बी एंड सेलेक्ट, खत्म। सेलेक्ट केस से बाहर आ गए, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू ग्रेड, ग्रेड की वैल्यू क्या आई है, बी, तो लेबल में क्या डिस्प्ले हो गया, बी। हाँ मेरी मर्जी, मैंने असाइन किया, मेरी कंडीशंस है कि मार्क्स इतने होंगे तो बी ग्रेड मिलेगा, 90 होंगे तो सी ए मिलेगा, आप ओ रख लो, ए प्लस रख लो, आपकी चॉइस है, ठीक है। वो तो आपकी कंडीशन है ना, आपका जो रिक्वायरमेंट है कि मेरे को इस तरह से एग्जीक्यूशन करानी है, ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ग्रेड आएगा, ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ग्रेड आएगा, ठीक है। वो तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ओके। अकॉर्डिंग टू दैट एनी वन ग्रेड विल बी असाइंड, then after that that grade is displayed in the label. Clear है select case सबको? Similar with the if then else. हाँ, अगर मार्क्स आपके किसी के 70 से ग्रेड लेस देन आ रहे हैं तो ग्रेड ई आ जाएगा। चलो सपोज 65 ले लिए, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, केस एल्स में चला गया, ग्रेड की वैल्यू ई, एनी वन वैल्यू विल बी असाइन, कोई एक वैल्यू जरूर असाइन होगी। अगर ग्रेड सी तक कुछ भी ना हो, हाँ तो ई में चला गया ना, ऐसे कैसे हो सकता है, बताओ बताओ। सपोज करो 70 से ग्रेटर है, लेस देन 80 है, ग्रेड सी आ रहा है, ठीक है। अब मार्क्स मैंने 65 एंटर कर दिए, ग्रेटर देन 70 वाली फॉल्स हो गई, तो केस एल्स मींस जब तीनों में से कोई कंडीशन ट्रू नहीं है तो केस एल्स चलेगा, केस एल्स चलेगा ही चलेगा, 50 भी आ गए तो भी, बिकॉज मैंने अभी 3 लगाई है ना, आप इसको केस और बना लो, ग्रेटर देन 60, लेस देन 70, ग्रेटर देन 50, लेस देन 60, कंटिन्यू विद द केसेस, ग्रेड डी ई रख लो, लास्ट में लेस देन 40 पे रख लो, फेल या ई, किसी भी बटन के क्लिक इवेंट पे, ठीक है। बटन बनाओ, बटन के क्लिक इवेंट पे ये कोडिंग लगाओ, क्लिक करेंगे ग्रेड असाइन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ओके, योर टॉपिक इज फिनिश्ड, कम टू द एक्सरसाइज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आंसर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। अगर एक्सरसाइज में अगर टाइम नहीं भी बचा तो एटलीस्ट क्वेश्चन आंसर्स यू विल डू इन फेयर कॉपी। हाँ जी, 9 नहीं होंगे, मैं कटवा रही हूँ बीच में, लूपिंग वाले कट करने ना हमने। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर्स पेज नंबर 107, क्वेश्चन आंसर्स ऑन पेज नंबर 107। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल, बाद में। हाँ जी अर्शप्रीत, करेक्ट, रिकैप टाइम में दिया हुआ है, हाँ यस, पेज नंबर 106 रिकैप टाइम में दिया हुआ है। देन हाउ विल यू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन विजुअल बेसिक, हाँ तो डिम स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल इन वीबी, देन गिव सिंटैक्स आल्सो, then give syntax also. What is the syntax of dim statement? This can be one question also. Next, unminded beta, next week आपका टेस्ट भी है ट्यूसडे को, इसी चैप्टर का, ठीक है। So be careful in the class, be attentive in the class, because इन्हीं टॉपिक्स में से दोबारा टेस्ट भी है आपका। हाँ तो डिम, आपको डिम स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, पहले पूरा सेंटेंस लिखोगे, क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, हाउ विल यू डिक्लेयर अ वेरिएबल, वी डिक्लेयर अ वेरिएबल बाय यूजिंग द डिम स्टेटमेंट। देन सिंटैक्स ऑफ डिम स्टेटमेंट, डिम वेरिएबल नेम एज डेटा टाइप,
एग्जाम्पल देनी, सिंटेक्स देना है आंसर में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर ऑपरेटर्स? Operators are special symbols used to perform calculation, making comparison, and checking logical condition in the program. Okay. There are two types of operators. Three types. We will do three types. क्वेश्चन में नेम एनी टू लिखा है. नेम ऑल द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स. एनी टू नहीं आएगा, नेम ऑल. नेम ऑल कैटेगरीज. ठीक है. ओके, लिसन, एक करेक्शन भी करो. एक करेक्शन करो. अभी अभी आपने डेफिनेशन बोली है ईशान. मेकिंग कंपैरिजन एंड क्लिकिंग लॉजिकल कंडीशन. चेकिंग. चेकिंग. क्लिकिंग नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा? चेकिंग. 106 पे क्लिकिंग लिखा ना बेटा, चेकिंग आएगा ना. चेकिंग लॉजिकल कंडीशन. बाकी ये है. 1 मिनट. क्लिकिंग की जगह रिप्लेस करो, करेक्शन करो, चेकिंग लॉजिकल कंडीशन. Then second part of question will be name all the categories of operators. Arithmetic, relational, logical. 3 categories. Next question, write a short note on control statements. Control statements are used to control the execution of a program, either by repeating or by skipping the execution of a statement or a set of statements. Control statements are the control statement is if then else statement. Okay, if then else and select case. There are 2 decision. मैंने अभी beginning में इसीलिए कराया. हाँ जी, write a short note on control statements. Again, recap time. Control statements are used to control the execution of program either by repeating or by skipping the execution of a statement or a set of statements. Last line. Recap time का last point. ठीक है. Then there are decision statement. उसने पूछी है name the, listen, sentence फिर गलत है. Name the all the decision of लिखा हुआ, of नहीं आएगा ना. Name all the decision control statements. Of word को, of जो word है उसको name all the decision control statements. ठीक है. Then there are 2 decision control statements. One, if then else. Second, select case. 2 points बना के if then else select case. Next, what do you mean by implicit and explicit variable declaration? What do you mean by implicit and explicit variable declaration? दोनों के पास बुक नहीं है. आपके पास लास्ट टाइम भी नहीं थी लैब में वर्क करते वक्त. This is not done. I am asking about implicit and explicit declaration. हाँ जी, yes गुरदीप. बेटा पूरा नहीं लिखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सिर्फ उसमें से आंसर एक्सट्रैक्ट करो. उस पैराग्राफ में से क्वेश्चन को, आंसर को एक्सट्रैक्ट करो. डोंट राइट द फुल पैराग्राफ. Implicit declaration means whenever VB, कभी भी VB में हम वेरिएबल बिना डिक्लेयर किए अगर यूज करना स्टार्ट कर दे, मैं सीधा लिखना शुरू कर दूं मार्क्स इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट. ठीक है. तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट डाटा टाइप के साथ वेरिएबल ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाता है. दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन. ठीक है. एक्सप्लिसिट मींस व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल बाय यूजिंग द कीवर्ड ऑप्शन एक्सप्लिसिट. ऑप्शन एक्सप्लिसिट कीवर्ड को यूज करके अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन. अभी आप सिर्फ इसकी डेफिनेशन करो, नो नीड टू डू द प्रैक्टिकल ऑफ दिस. लिखो, भी दिया हुआ है. Whenever Visual Basic encounters a new variable, it assigns the default variable type and value. Default value 0 होती है. पेज नंबर 100 पे दिया हुआ है. अंडरलाइन कर लो. Whenever Visual Basic encounters a new variable, it assigns the default variable type and value. This is called implicit declaration. For explicit declaration, use the statement option explicit before variable declaration. Last line. For explicit declaration, use the statement option explicit before variable declaration. Clear?
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेपिटेशन है. व्हाट इज द यूज ऑफ डिम स्टेटमेंट? डिम स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल अलोंग विद इट्स सिंटैक्स. सिंटैक्स हाँ सेम है, सिंटैक्स भी देना है. ठीक है, गिव सिंटैक्स आल्सो. डिम वेरिएबल नेम एज डाटा टाइप, सिंटैक्स देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ लिस्ट बॉक्स? अब आपके चैप्टर में लिस्ट बॉक्स हमने डिस्कस नहीं करी है. ओके, व्हेन डू वी यूज लिस्ट बॉक्स? बट आपके चैप्टर में आपने यूज नहीं करी है. वी हैड यूज्ड रेडियो बटन्स एंड चेक बॉक्सेस. तो चेंज द क्वेश्चन. व्हाट इज द यूज ऑफ रेडियो बटन? व्हाट इज द यूज ऑफ रेडियो बटन? व्हाट इज द यूज ऑफ रेडियो बटन? ठीक है, बोलो हरीश. Button. Radio buttons are used when we are supposed to choose only one option out of a number of options. जब हमें एक से ज्यादा ऑप्शंस में से सिर्फ एक ऑप्शन यूज करनी है, चूज करनी है, then we use the radio button. ठीक है, आंसर will be radio button are used when a user can choose, where a user can choose only one option out of number of options. थोड़ा सा आंसर का सेंटेंस अपने आप बनाओ, जरूरी नहीं है हर सेंटेंस पूरा का पूरा बुक में दिया हो. क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चेंज कर लो. आपकी बुक में ठीक है आंसर दिया हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चेंज द सेंटेंस. Radio buttons are used when a user have to choose one option out of many options. It is also known as option button. It is also known as option button. Dim statement is used to declare a variable. और उसका सिंटैक्स फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट किया था हमने, सेम आंसर है. वहां पे भी मीनिंग भी दिया था हमने. हाउ वी डिक्लेयर अ वेरिएबल? वी डिक्लेयर अ वेरिएबल यूजिंग डिम स्टेटमेंट. तो यहाँ पे क्या पूछा है? डिम, व्हाट इज द यूज ऑफ डिम स्टेटमेंट? डिम स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल. क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सेंटेंस को चेंज करो. हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स. यस गर्ल्स, एनीवन? डिफरेंस बिटवीन रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स. गर्ल्स बोलो. गर्ल्स की पार्टिसिपेशन क्यों नहीं है आज? क्वाइट बोलो. करेक्ट. दोनों की डेफिनेशन है. रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर वैल्यूज. कितने अरेंजमेंट करवा देते हो? Logical operators are used to combine two or more conditions and display the results accordingly. Done? Okay. Next, do while and for next cross कर दो because we had skipped that topic. Second question cut कर दो. Third question, enabled and visible property. This we had already discussed in class also. Enabled and visible property. Enable property क्या करती है? Enable property. Enable property means control will be visible, but whether it is enable or not, whether it is working or not, ठीक है, that is set by the enabled property. अगर हमने true रखा है तो कंट्रोल विजिबल भी है, हम उसके ऊपर क्लिक भी कर सकते हैं. अगर enable property false है तो कंट्रोल विजिबल है, but we cannot click on it. That is the use of enabled property. ठीक है, तो बेटा वही सेंटेंस है, मैं वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, मैं आपको मीनिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ उसका. कितनी बार बोला बुक की लैंग्वेज के पीछे, बुकिश लैंग्वेज के पीछे मत भागा करो. आपको मीनिंग पता उस सेंटेंस का?
Enable property makes the set the controls whether it is enable or not. ठीक है, whether the control is enable or not, whether we can click on it or not, that is set by the enabled property. Visible property will set whether the control is visible or hidden. अगर ट्रू है तो कंट्रोल विजिबल है, अगर फॉल्स है तो कंट्रोल है फॉर्म पे बट हिडन है, विजिबल नहीं है. दैट इज द विजिबल प्रॉपर्टी. If the visible property is true, whether the control is visible. If the property is false, control is hidden. So visible property determines whether the control is visible or hidden. Enable property determines whether the control is enabled or not. ठीक है? Visible property determines whether the control is visible or not. Enable property determines whether the control is enabled for clicking or not. Enable for using during runtime. ठीक है? Or not. Clear? Clear है? Question answers clear है? All of you will do these question answers in fair copy now and submit your fair copy. Today is Thursday, Saturday, before Saturday. Now mind it, this is the last checking for the term. I'm going to give marks. हाँ? Period हो या ना हो, दो ही चैप्टर है. Submit your copy by tomorrow. Listen, submit your copy by tomorrow. ठीक है? नहीं, कल तक दोगे आप अपनी कॉपीज. Listen, ईशान, because after that you are getting multiple assessment assignment also. वेरी सिंपल, एक पेज पे सिर्फ आपको कुछ थोड़ा सा काम देना है, वो आपने सबमिट करना है. नहीं, ऑन अ पेपर, ऑन अ टेस्ट शीट. मल्टीपल असेसमेंट कंपल्सरी नहीं होती है. आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ दिस टर्म कि हाउ द मार्क्स आर एडेड विद योर रिटन एग्जाम. आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग. आपको टर्म की स्टार्टिंग में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि आपके मार्क्स कैसे ऐड होते हैं हर एक असाइनमेंट के. तो इफ यू आर नॉट गोइंग टू सबमिट इट, यू विल गेट 0 फॉर दैट. Please. Clear है? Question answers you will submit your copy by tomorrow. ये अंजनी और करन्या both will collect the copies. You will कल. बेटा after that भी मैं आपको वो assignment भी देनी है ना. That's why 5-6 question answers है, आप कर सकते हो easily. हाँ. Fill in the blank first. Fill in the blank. Variable. Anji, Ishan, book कहाँ चली गई? So you are not supposed to write in rough copy then. Dash data type is used to store date and time value. Variable. Sentence पढ़ो पहले. Date data type. Dash are special symbols that are used to perform calculations. Operators. Dash operators are used to compare two values. Relational. गुरुदेव, तो आपके पास बुक्स ही नहीं होती सबके पास. Dash operators are used to combine two or more conditions. Logical. सक्षम. Dash statements are used to control the execution of a program. Control statements. Dash makes the repetitive work easier. Do while. For next आ सकता था, but next blank में आपका for next आना है. That's why आप ये दोनों क्वेश्चन, दोनों ब्लैंक्स कट कर दो, बिकॉज हमने ये टॉपिक कट कर दिया हुआ है, स्किप कर दिया है, तो दोनों ब्लैंक्स कट कर दो.